So in last lecture, we discussed about the power generated in induction motor. जिसके पहले हमने ये पैरामीटर्स डिस्कस किए थे. All the parameters जिनका prefix 1 है, they are related to stator, और जिनका suffix 2 है, they are related to rotor. All these parameters are per phase because हम 3-phase induction motor की बात कर रहे हैं. So if it is 3-phase, then हम ये जो parameters consider करते हैं, they are per phase parameters. Frequency of EMF induced in rotor winding is F2, which is F1, जो हमने पहले derive किया था. Then at standstill, when slip is equal to 1 and NR is equal to 0, तब क्या होता है? The rotor picks up the speed and the torque is developed. All this happens, and at standstill, S is equal to 1 and F2 is equal to F1. Therefore, X2 is equal to 2 pi F2 L2, which is equal to S X2. X2 मतलब क्या? Rotor reactance per phase at standstill. तो जब rotor run होना start होता है, slip is no more equal to 1 and leakage reactance per phase of rotor at some slip S is equal to S into X2. Similarly, the leakage impedance. So everywhere जब rotor starts rotating at certain speed nr, जब slip is equal to s है कोई, तब ये जो सारे पैरामीटर्स है उनको उनमें s ऐड हो जाता है, मतलब s से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उनको, जैसे EMF इंड्यूस भी है उसको भी. So rotor current is E2 upon Z2 and at slip again the E2 becomes SE2. वहां पे नीचे वो X2 को भी S square से मल्टीप्लाई होगा. Then we discussed about cos theta 2 and finally we made this phasor diagram for induction motor. उसके बाद हमने इनपुट पावर जो एयर गैप पावर, मैकेनिकल पावर, शाफ्ट पावर, उसके बारे में सबके बारे में डिस्कस किया था. And the air gap power is equal to I2 square R2 by S. अथर्व उठव त्याला, जा बाहेर जा बाळा, आपला अजून नाही झाला दिवस उजाडला. या जा 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 बाहेर जा. अजून गणपतीचं विसर्जन कुठं झालंय? व्हायचंय ना अजून. जा जरा डोकं टेकून या, जा. Then copper loss in rotor per phase is I2 square R2. तो मैकेनिकल पावर जो अवेलेबल रहेगा रोटर में, इट इज एयर गैप पावर माइनस दैट रोटर कॉपर लॉस. हमने कोर लॉस को निग्लिजिबल माना है, इसीलिए ये दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन. एंड PM, that is mechanical power developed in rotor, is equal to I2 square R2 into 1 by 1 minus S upon S. तो हमने ये तीनों में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया बिटवीन PG, PM and PCU. And shaft power finally is mechanical power minus the rotational loss, जो friction losses होते हैं, windage losses होते हैं. And we made this power diagram के इनपुट से लेके, जो इनपुट हम स्टेटर में देते हैं उसके बाद स्टेटर के लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस होने के बाद एयर गैप में पावर आती है, फिर वो एयर गैप की पावर के बाद रोटर में लॉसेस होते हैं, एंड उसके बाद मैकेनिकल पावर डेवलप होती है. एंड मैकेनिकल पावर में भी ये मैकेनिकल लॉसेस होके फाइनली हमें शाफ्ट पे पावर अवेलेबल होती है. So this is the power flow diagram, very important concept in induction motor. The electromagnetic torque, which is also called as internal torque, because ये electromagnetic fields के वजह से torque develop होता है, इसीलिए उसको electromagnetic torque कहते हैं, which is TE, and shaft torque is TSH. So this is again the important equation. Mechanical power is equal to torque into speed. मैकेनिकल पावर अगर HP या किलोवाट में हमें हमारे पास है, टॉर्क न्यूटन मीटर में रहेगा, एंड स्पीड विल बी इन रेडियन पर सेकेंड, नॉट इन RPM. तो ये कन्वर्जन जो है रेडियन पर RPM टू रेडियन पर सेकेंड का, उसको हमें RPM को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 60. 2 पाई मतलब वो रेडियन में कन्वर्ट होता है, एंड पर सेकेंड है इसीलिए उसको 60 से डिवाइड किया है, और उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. जो स्पीड रेडियन पर सेकेंड में होता है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. अगर हमने रोटर के स्पीड को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट किया NR को, तो इट बिकम्स ओमेगा R. अगर हमने सिंक्रोनस स्पीड NS को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो इट बिकम्स ओमेगा S. ओके, सो TE इज इक्वल टू PM अपॉन ओमेगा R,
एंड ओमेगा आर का हमने इक्वेशन डाल दिया, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू पीजी अपॉन ओमेगा एस. शाफ्ट टॉर्क TSH is equal to PSH upon omega r because shaft को कितनी पावर मिली है PSH and rotor is rotating, shaft is rotating at omega r. So torque available is TSH. यहाँ तक हमने last time discuss किया था. Now we will move ahead and we will form the equivalent circuit. जैसे ट्रांसफॉर्मर का equivalent circuit हमने बनाया था वैसे ही इंडक्शन मोटर का भी equivalent circuit होगा. ये ट्रांसफॉर्मर इतने डीप में नहीं रहेगा बिकॉज दिस हैज गॉट मेनी मोर कॉम्प्लिकेशंस देन ट्रांसफॉर्मर. तो एक बेसिक सर्किट हम डेवलप करेंगे और वो बेसिक सर्किट के जो पैरामीटर्स है उनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए क्या टेस्ट है. ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते थे? शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट. So similar to that, here also there are two main tests and one supplementary test for induction motor. So we will discuss about it. Now first let's draw the equivalent circuit. So हमने equivalent circuit in transformer also हमने वो KVL equation से develop किया था. So here also we have a KVL equation stator side का V is equal to V1 dash which is also equal to E1 plus I1 R1 plus J I1 X1. ये ट्रांसफॉर्मर के जैसा ही है. जैसे ट्रांसफॉर्मर में था हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है V1, बट ट्रांसफॉर्मर हमने सिंगल फेज किया था. अब यहाँ पे ये सारे क्वांटिटीज पर फेज है. तो V1 क्या करता है ट्रांसफॉर्मर में? इट जनरेट्स फ्लक्स. उसके लिए हमें E1 लगता है या V1 डैश लगता है. वो प्राइमरी के रेजिस्टिव एंड लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप को फीड करता है. ठीक है, द सेम थिंग इज मेंशन हियर. तो यहाँ पे जो नो लोड करंट रहेगा, नो लोड करंट जो हमने एक बैच ने उस दिन ऑब्जर्व किया कि हमने इंडक्शन मोटर को नो लोड पे घुमाया था. ठीक है, तो नो लोड करंट इट इज कॉल्ड एज एक्साइटिंग करंट. इसको हम कहते हैं IE. वहां पे हमने इसको नाम दिया था I0. नो लोड था वो ट्रांसफॉर्मर में. यहाँ पे वो I0 नहीं रहेगा, इट इज IE बिकॉज इट इज एक्साइटिंग करंट. तो जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था प्राइमरी साइड का, क्या क्या था प्राइमरी साइड के ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में? क्या था प्राइमरी साइड में? बोलो क्या था? हाँ, प्राइमरी वाइंडिंग के कौन से पैरामीटर? कौन से पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाए थे ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड में? हाँ, रेजिस्टेंस. कौन सा रेजिस्टेंस? नाम क्या था उसका? R1 और R1 X1 और व्हाट एल्स? और कुछ था? I1 था, I1 डैश था, I0 था. I0 किसमें से फ्लो हो रहा था? I0 किसमें से फ्लो हो रहा था? एंड I1 डैश किसमें से फ्लो हो रहा था? I0 was divided in IC and IM. और ये IC कहाँ से फ्लो हो रहा था? RC में से. एंड IM was flowing through XM जिसको हम एक्साइटेशन ब्रांच कहते थे, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच टू बी प्रिसाइज. तो सिमिलरली स्टेटर साइड इक्विवेलेंट सर्किट में जो हम, because stator is equivalent to the primary of the transformer, so equivalent circuit of stator जैसे वो ऊपर KVL इक्वेशन लिखा है
उसको सेटिस्फाई करने के लिए इनिशियली यहाँ पे कौन सा वोल्टेज आएगा, V1 आएगा. Of course that V1 will be at certain frequency f, जो हमारा रेटेड फ्रीक्वेंसी रहता है, करेक्ट. फिर क्या आएगा, यहाँ से I1 फ्लो होगा विच इज अ स्टेटर करंट पर फेज. कहाँ से फ्लो होगा I1, कौन से पैरामीटर के थ्रू I1 फ्लो होगा, इसमें अभी कैसे फ्लो होगा, I1 टोटल पूरा किस में से जाएगा, आई उसका I1 डैश और IE होने से पहले वो किस में से फ्लो होगा, R1 and X1. So here we will have this R1 and X1. So this is R1 and X1. उसके बाद स्टेटर वाइंडिंग में से करंट फ्लो हुआ वोल्टेज देने के बाद, उसके बाद क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग में से करंट फ्लो हुआ, उसके बाद क्या होगा, आरएमएफ डेवलप होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के लिए उसको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, एयर गैप. एयर गैप में ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, बट उसको वो जो IE है उसको किसी में से तो पास होना पड़ेगा. जैसे ट्रांसफॉर्मर में हमने RC XM दिखाए थे, देवर फिक्टिशियस क्वांटिटी, वो एक्चुअली कनेक्टेड नहीं रहते हैं. तो यहाँ पे भी मेरा एक मैग्नेटाइजिंग ब्रांच होगा, सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर, जिसमें से IE फ्लो होगा. अगेन यू हैव कोर लॉस दिखाने के लिए हमने RC दिखाया था, एंड मैग्नेटाइजेशन के वजह से जो लॉस होता है उसको दिखाने के लिए हमने ये XM दिखाया था. And finally, what we have available here is V1 dash. So this is the stator side equivalent circuit. यहाँ से अगेन जो बचा हुआ करंट है दैट इज I1 डैश, जो लोड के वजह से आता है. भैया RC और XM आई थिंक DSY का भी हो गया है ना, RC XM लास्ट टाइम बताया था, तो वही ये है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट उस दिन हमने किया था ना. डन, शैल वी गो अहेड. तो अभी ये स्टेटर पार्ट बन गया, अभी बचा कौन, who is left, rotor. So now we need to develop equivalent circuit for rotor. Okay. So compared to the stator, मतलब कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग, अभी याद करो ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना था, क्या पार्ट्स थे उसमें. ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स क्या थे इक्विवेलेंट सर्किट, I2 करंट फ्लो हो रहा था किसमें से, R2 एंड
x2 में एंड एट द टर्मिनल हमारे पास V2 था, पहले E2 डेवलप हो रहा था, वहां पे V2 था। अभी यहाँ पे एक्चुअली मेन डिफरेंस आता है जो है इंडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंस। ट्रांसफॉर्मर में हमें आउटपुट में क्या मिलता है, कौन सी पावर मिलती है, इलेक्ट्रिकल पावर। इंडक्शन मोटर में आउटपुट में कौन सी पावर मिलती है, मैकेनिकल पावर। अभी ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के पावर को या उसके पैरामीटर्स को भी हमें इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाना पड़ेगा, तो उसको हम कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट बोल सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, पे अटेंशन। हमारे पास I2 का इक्वेशन है, I2 का कोई इक्वेशन हमने डिराइव किया था। I2 क्या होना चाहिए, करंट का इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज करंट, V अपॉन R नहीं है, अभी ये AC है, तो V अपॉन Z, ओके। तो I2 इज द करंट फ्लोइंग इन द रोटर सर्किट। अभी रोटर सर्किट में वोल्टेज या EMF कितना डेवलप होता है, हाँ, basically it is E2 at standstill, it is E2 divided by, क्या लिखूं, क्या लिखूं इधर, अभी बोला ना क्या आएगा, Z क्या 2 बराबर, दिस इज एट स्टैंड स्टिल। जब रोटर रोटेट होने लगता है तो क्या होता है, दिस E2 becomes SE2 एंड Z2 में, अभी Z2 में क्या चेंज होता है, Z2 का इक्वेशन क्या है, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर। जब S स्लिप पे रोटर रोटेट होने लगता है एट S स्लिप, ये याद है सबको, ये हमने किया है ऑलरेडी, करेक्ट, ऑलराइट। कैन यू डिवाइड दिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो भी किया था शायद हमने, S से डिवाइड किया था, वो भी लिख दो क्या आता है, व्हाट डू यू गेट हियर। अगर S हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से निकाला तो क्या मिलता है, okay, can I write this is the magnitude, this is magnitude of I2 actually। अगर मैं I2 का इक्वेशन लिखूं सिर्फ I2 फेजर, तो ये मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा, दिस विल बिकम SE2 अपॉन R2 प्लस JSX2। ये अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है मैंने, हाँ, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है, तो I2 अलॉन्ग विद दिस एंगल्स उसका जो भी है। सो इसमें से S निकालो तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को S से डिवाइड किया, व्हाट आई विल गेट, E2 अपॉन R2 अपॉन S प्लस JX2, ओके। अभी हमने ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में, इफ यू रिमेम्बर, हमने रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी ऐसे किया था, वो ट्रांसफॉर्मर को निकाल देने के लिए। तो वैसा हम इधर भी कर सकते हैं, रिफर टू प्राइमरी। तो ये ऑल जो वैल्यूज है ये हम रिफर टू प्राइमरी निकाल सकते हैं, बराबर। रिफर टू प्राइमरी करते हैं तब उसको क्या लिखते हैं, X2। अगर X2 इज रिफर टू प्राइमरी तो हम उसको क्या लिखते हैं, X2 भूल गए, DSY को नहीं हुआ है अभी तक, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, डिनोट कैसे करते हैं उसको, X2 डैश, राइट। तो एवरी ईच एंड एवरी पैरामीटर को हम डैश लगाते हैं,
ये उसको रेफर टू प्राइमरी लिखा, अब ये रिफर टू स्टेटर अगर किया तो यही करंट को इफ आई चेंज दिस करंट I2 refer to, अभी हमारा प्राइमरी साइड, इट इज नॉट प्राइमरी, इट इज कॉल्ड एज स्टेटर, so refer to स्टेटर साइड, तो क्या होगा, ये I2 डैश बन जाएगा, I2 डैश इज इक्वल टू E2 डैश अपॉन R2 डैश अपॉन S प्लस JX2 डैश, राइट। अभी हमने वहां पे E1 जो E2 को ट्रांसफॉर्म किया था प्राइमरी साइड पे, तो वो जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो कंसीडर करके किया था, तो मेरा E2 डैश जो है वो E1 बना था और हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया था डायरेक्टली। ट्रांसफॉर्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये देखो, ये हमने E1 इज इक्वल टू E2 डैश किया था और सेकेंडरी साइड के सर्किट को डायरेक्टली प्राइमरी साइड के सर्किट से कनेक्ट किया था। ये दिस इज ऑल मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ये प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, ये हमारे कैलकुलेशंस इजी करने के लिए ये है। तो E2 डैश बिकम्स इक्वल टू E1, राइट। तो वहां पे मैं लिखू E2 डैश जो लिखा है उसको इक्वल टू E1, दिस इज इक्वल टू E1, बराबर। और नीचे वाला तो सेम रहेगा, R2 डैश अपॉन S प्लस JX2 डैश, राइट। तो हमने ये इक्वेशन को 3 पार्ट में डेवलप किया। सबसे पहला जो इक्वेशन था मेरा ये था, दिस इक्वेशन, दिस वाज स्टेज 1, दिस वाज स्टेज 2 एंड दिस इज स्टेज 3, ओके। तो अगर पहले ये इक्वेशन को मुझे इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाना है तो कैसे सर्किट ड्रॉ करूं, ये वाले इक्वेशन को मुझे इक्विवेलेंट सर्किट में दिखाना है। दिस नंबर वन को कैसे ड्रॉ करूं, यू ड्रॉ इट, नंबर वन आपके पास है ये इक्वेशन, ड्रॉ करो। वोल्टेज कितना आएगा, करंट कितना आएगा और कहां से फ्लो होगा ये, हाँ क्या ड्रॉ किया बताओ, वोल्टेज कितना बताओ, इक्वेशन नंबर 1 से हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वाले, वोल्टेज कितना बताओ, SE2 आएगा, करंट क्या फ्लो होगा I2 एंड कहां से फ्लो होगा R2 एंड SX2, ओके। सो लेट्स डू दैट, यहाँ पे पहले SE2 आएगा, फिर आएंगे सॉरी पहले आई एम शोइंग द इंडक्टेंस फर्स्ट, यू आल्सो शो इट लाइक दैट, उसका रीजन है बाद में समझ में आएगा वो। दिस इज SX2 and this is R2, current flowing is I2,
ओके। फिर हमें दूसरा इक्वेशन मिला, कैसे मिला ये दूसरा इक्वेशन? ये दूसरा इक्वेशन हमें कैसे मिला? एस से डिवाइड किया ऊपर नीचे, सो लेट्स डू दैट। ये ट्रांसफॉर्म हुआ, क्यों ट्रांसफॉर्म हुआ? क्योंकि हमने 1/s से डिवाइड किया। तो अभी वोल्टेज कितना है उधर दिख रहा है आप लोग को? ये वोल्टेज कितना है? E2 है। और वो I2 जो है वो किस में से फ्लो हो रहा है? R2/S and X2, बराबर? So let us show that. Now let me draw it first, you draw it later on. पहले यहाँ पे E2 आएगा, पे अटेंशन हियर एवरीवन। पहले यहाँ पे E2 आएगा, फिर आएगा मेरा X2। अभी SX2 नहीं है, सिर्फ X2 है। और फिर जो आ रहा है वो क्या है? इट इज R2/S। करंट इज फ्लोइंग विच इज I2। अभी अगर ये R2/S है एंड मुझे पता है कि S किस पे डिपेंड होता है? स्लिप किस पे डिपेंड होता है? NR पे। वेरी गुड। S इज इक्वल टू NS माइनस NR/NS। तो S तो चेंज हो सकता है, X2 R2 एक बार बने चेंज नहीं होंगे, बट बिकॉज ये पैरामीटर अभी R2/S है तो दिस पैरामीटर विल बी वेरिएबल। और ये आता है हमारा पहला स्टेज जहां पे हमने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों को कंबाइन किया है। बिकॉज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स वेरिएबल नहीं है, बट वो वेरी क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस एस। और एस वेरी क्यों हो रहा है? एस वेरी क्यों किसके वजह से होता है? चेंज इन एनआर। और एनआर वेरी क्यों होता है? एनआर वेरी क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लोड। तो जो मैकेनिकल लोड है उसका इफेक्ट जो है वो इधर दिख रहा है। ऐसी कोई भी चीज ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट में थी क्या? नहीं। इट वॉज ऑल फिक्स्ड, X2 R2 दोनों फिक्स थे, बट अभी ऐसा नहीं होगा। ओके, इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर। ये ड्रॉ किया। डन। ओके, अभी हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जिसको हमने रिफर टू स्टेटर साइड किया है। अब इसमें वोल्टेज कितना बताओ? कितना वोल्टेज है इधर? E1। E1 विच इज इक्वल टू E2 डैश। हाँ, करंट क्या है? हाउ मच इज द करंट? I2 डैश विच ऑब्वियसली इक्वल टू I1 डैश होता है। I1 डैश मतलब ये किसी को रिफर नहीं किया हुआ है, ये प्राइम उसके स्टेटर का जो लोड के वजह से करंट आता है वो है। हाँ, इसके बाद क्या आएगा? X2 डैश एंड फिर यहाँ पे अगेन वी हैव दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 डैश बाय S।
अभी हमने देखा था इसके पहले कि जब भी हम ये E2 को S से मल्टीप्लाई करते हैं तब E2 मतलब जो सेकेंडरी या रोटर वोल्टेज है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसका फ्रीक्वेंसी भी S से मल्टीप्लाई होता है, बराबर। रोटर साइड को फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला था, F2, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे SE2 लिखा है तो रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी was F2 which is equal to S into F1, ऐसे ही था। अभी हमने यहां से S निकाल दिया तो अभी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ। नाउ इट वी हैव मेड इट F1, वो एक्चुअली बनेगा नहीं कभी प्रैक्टिकली, बट हमने मैथमेटिकली उसको F1 किया है। एंड फाइनली ये जो हमें मिला है, दिस इज द रोटर इक्विवेलेंट सर्किट referred to स्टेटर साइड। बिकॉज सारे डैश हो गए, हमने E2 डैश को E1 कहा है, सो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट ये रोटर का सर्किट टू दी स्टेटर साइड। स्टेटर का सर्किट हमने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। तो दोज हु हैव फिनिश्ड, ड्रॉ द कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट, स्टेटर एंड रोटर दोनों को मिला के। हेलो, हाँ बना है इक्विवेलेंट। सबसे पहले कौन सा वोल्टेज आएगा इधर, V1 आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी इज F और यू कैन राइट इट एज F1, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी है वो, ओके। उसके बाद कौन आएगा, R1, फिर
x1, मेन करंट कितना फ्लो होगा, I1, देन कम्स द पैरेलल ब्रांच जिसमें अगेन वी विल हैव RC एंड XM, और जिसमें से करंट फ्लो होता है IE। इतना सब होने के बाद यहां से कौन सा करंट फ्लो होता है, I1 डैश, ये हमने ड्रॉ किया है ना ऑलरेडी ऊपर, एंड दिस इज V1 डैश, ये जो वोल्टेज है ये V1 डैश, इट इज नथिंग बट द EMF इंड्यूस्ड, राइट, EMF इंड्यूस्ड जो फ्लक्स जनरेट करता है, बराबर। अभी हमें इसको आगे कौन जोड़ना है, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू स्टेटर साइड। अगर रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू स्टेटर साइड हम नहीं करेंगे तो हम उसको जोड़ नहीं पाएंगे, ओके। तो ये वाला जो रिफर टू स्टेटर साइड वाला इक्विवेलेंट सर्किट है, तो E1 इज इक्वल टू E2 डैश, फिर कौन आएगा इधर, X2, एंड उसमें से करंट फ्लो होता है I2 डैश, तो यू कैन सी I1 डैश एंड I2 डैश दोनों सेम है, एंड देन वी हैव दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज X2 डैश, सॉरी, R2 डैश अपॉन S। अभी हमने 3 पावर यहाँ पे इसके पहले डिस्कस किए थे, कौन से थे वो 3 पावर, कौन से 3 पावर डिस्कस किए थे, हाँ इनपुट पावर था उसमें, बट रिलेशन हमने किसके बीच में एस्टेब्लिश किया था, कौन से 3 पावर के बीच में हमने वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, PG, PM एंड PCU, मतलब PG इज इक्वल टू क्या था उधर, क्या फॉर्मूला था PG का, बोलो, PG का क्या फॉर्मूला था, I2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन S। अब ये पर फेज था ना, दिस वाज पर फेज, अगर हमें टोटल PG निकालना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो टोटल पावर्स इन ऑल फेजेस। अब ये PG में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट है मेरा PCU, बराबर, PCU का क्या फॉर्मूला है, I2 स्क्वायर R2, अगेन इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा क्योंकि रोटर में भी 3 फेज बन जाते हैं, एंड अनदर पावर इज PM which is I2 स्क्वायर इंटू R2, क्या 1 माइनस S अपॉन S, इसको भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डन। डन, नाउ लुक एट दिस, ये तो कॉमन है, 3I2 स्क्वायर सब में कॉमन है, बराबर, तो लुक एट दिस, R स्क्वायर लिखा मैंने गलती से, ये R2 है, हाँ, R2 बाय S, R2 डिवाइड बाय S को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, R2 बाय S को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट है R2 और दूसरा पार्ट है R2
इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस। आप ये मैथमेटिकली भी करके देखो कि आपको ये, आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने किया था वो, कि R2 प्लस और 1 प्लस 1 माइनस एस अपॉन एस क्या आता है आपको, 1 अपॉन एस आता है, बराबर। तो ये जो ऊपर वाला भाई साहब है इधर R2 डैश बाय एस, जो हमारे इक्विवेलेंट सर्किट में बैठा हुआ है, अगर मुझे ये पावर फ्लो दिखाना है ऐसे, या ये दो पावर अलग अलग दिखानी है, तो मैं R2 डैश बाय एस को R2 डैश एंड R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस कर सकती हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो मेरा ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, कौन, R2 डैश अपॉन एस, जो ये ऊपर बैठा है। I can divide this R2 dash by S in two resistances. Okay? इसमें से एक जो रेजिस्टेंस है दैट इज R2 डैश, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है दैट इज R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस, बराबर। अभी इन दोनों में से वेरिएबल कौन होगा, या दोनों वेरिएबल है, ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, इट इज फिक्स, R2 इज फिक्स्ड, R2 डैश को अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो भी फिक्स्ड हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, बाउंड रोटर, जिसमें हम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। हाँ, बट हम जनरली स्क्विरल केज के बारे में ही बात करते हैं। सो दिस इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, दिस इज वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स एस, तो ये वेरिएबल है। तो मैंने क्या किया, ये R2 डैश बाय एस एंड R2 डैश एंड R2 डैश इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस, इनको दोनों को सेपरेटली दिखाया। ठीक है, इसका फायदा क्या है, आई कैन शो, अभी ये जो इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें मेरे पास R2 डैश अलग से मुझे नहीं मिल रहा था, कि जहां पे मैं कॉपर लॉस दिखाऊं अपना इंडक्शन मोटर के रोटर का कॉपर लॉस, नाउ आई कैन शो दैट हियर, या वोल्टेज ड्रॉप इन रोटर कैन, आई कैन शो दैट हियर। एंड ये जो है बचा हुआ, ये पूरा का पूरा, इट इज द मैकेनिकल लोड, इट इज एनालॉगस मैकेनिकल लोड, इलेक्ट्रिकल एनालॉगस ऑफ मैकेनिकल लोड। जैसे आपका लोड चेंज होता है वैसे आपका रोटर का स्पीड चेंज होगा, और जैसे रोटर स्पीड चेंज होगा स्लिप चेंज होगा, एंड उसके वजह से ये वेरी होगा। ओके, सो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट में हमें यहाँ पे R2 डैश दिखाना है एंड यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस दिखाना है। सो लेट अस शो दैट। ये लिखा क्या आप लोगों ने, डिड यू नोट दिस डाउन? हो गया वो लिख के? तो अभी तक यहाँ तक सेम इक्विवेलेंट सर्किट था। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल एड दिस रेजिस्टेंस विच इज फिक्स्ड R2 डैश, एंड ये करंट जो है दैट इज I2 डैश। इसके आगे मेरा वो रिएक्टेंस आएगा विच इज X2 डैश, एंड ये है मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 डैश 1 माइनस एस अपॉन एस।
ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे भी दिखाते हैं, पता है ना? तो ये सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ट्रांसफॉर्मर में हमने कौन से टेस्ट किए थे इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए? ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। वैसे ही इंडक्शन मोटर में भी टेस्ट किए जाते हैं। जस्ट टेल मी कि ये टेस्ट अभी हम डिस्कस करें या ब्रेक के बाद डिस्कस करें, बिकॉज दे आर नॉट इन डिटेल। उसके बाद न्यूमेरिकल है। अभी चाहिए ब्रेक या बाद में चाहिए? हाँ, अरे बोलो। हाँ, ब्रेक लेते हैं ना, ओके। उसके बाद हम इक्विवेलेंट सर्किट के टेस्ट डिस्कस करेंगे एंड देन न्यूमेरिकल।
कॉलेजला जायला त्याचा नाही तर डायरेक्ट जायला विवेकानंदला गेलो आपल्याकडे लास्ट
So now we'll discuss about the tests which are to be conducted on the induction motor to find out all these parameters. तो जैसे ट्रांसफॉर्मर में मेरे पास ओपन सर्किट टेस्ट था, ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं? हाँ, और सप्लाई वप्लाई कुछ तो देते हैं, हाँ क्या देते हैं? फुल लोड करंट। फुल लोड कैसे फ्लो होगा अगर लोड ही नहीं कनेक्ट किया है तो? सप्लाई कितना, वोल्टेज कितना देते हैं? रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो उसमें हाँ मतलब आगे वाला सर्किट तो था ही नहीं उसमें, बिकॉज हमारे पास लोड नहीं है। एंड विच पैरामीटर्स डिड वी फाउंड आउट इन ओपन सर्किट टेस्ट? पीसी, कोर लॉस कंपोनेंट मिला था, फिर उसमें से क्या निकाला हमने? आरसी एंड एक्सएम, बराबर। तो वो था मेरा ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। अभी इंडक्शन मोटर में सेकेंडरी में कोई सर्किट है क्या जिसको हम ओपन कर सकते हैं? अगर वैसे करना है तो मुझे रोटर को ओपन करके रखना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। बट एक चीज हम कर सकते हैं जो हमने ओपन सर्किट में किया था, एंड दैट इज डोंट कनेक्ट एनी लोड। जैसे ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट मतलब क्या, हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया था, वैसे ही इंडक्शन मोटर में अगर हमने उसके शाफ्ट को कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया, so it is as good as no load. तो ओपन सर्किट जो ट्रांसफॉर्मर में था दैट इज इक्विवेलेंट टू नो लोड टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर। जो उस दिन हमने रेटेड सप्लाई दिया था, इंडक्शन मोटर को रन किया था, नो लोड करंट फ्लो हुआ था। ऑफ कोर्स हमने पावर मेजर नहीं की उस दिन, दो वी विल डू इट इन द नो लोड टेस्ट। तो दैट इज द नो लोड टेस्ट कि हम रेटेड वोल्टेज दे देते हैं, रेटेड फ्रीक्वेंसी भी दे देते हैं, बट उसको हम कोई लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, तो अंडर नो लोड मिनिमम स्लिप पे वो घूमने लगता है। ओके, सो दैट इज दी नो लोड टेस्ट ऑन द इंडक्शन मोटर। दूसरी टेस्ट हमने ट्रांसफॉर्मर पे कौन सी की थी? शॉर्ट सर्किट। उसमें हमने क्या किया था? हाँ हाँ, शॉर्ट किया था। और सेकेंडरी को शॉर्ट किया था जहां पे हम लोड कनेक्ट करते हैं। और क्या किया? सप्लाई कितना दिया? हाँ, कितना सप्लाई दिया? रेटेड वोल्टेज दिया था। शॉर्ट सर्किट में एम क्या है, क्या करना है हमें टेस्ट में? पीसीयू फाइंड करना है। तो पीसीयू कौन सा पीसीयू फाइंड, कोई भी पीसीयू फाइंड करना है? रेटेड पीसीयू फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेटेड करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने शॉर्ट करके जितना वोल्टेज जरूरी है रेटेड करंट को फ्लो करने के लिए उतना करंट हमने फ्लो करवाया, रेटेड करंट फ्लो कराया, उतना वोल्टेज हमने दिया। तो हियर इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर के रोटर के कंडक्टर्स में मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? आई रिपीट द क्वेश्चन। इंडक्शन मोटर के रोटर के कंडक्टर में, रोटर कंडक्टर्स में मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस इन रोटर कंडक्टर? कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर कंडक्टर में? E2। तो ये E2 का वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगा? इज इट ओनली E2? इज इट ओनली E2? SE2, ठीक है। तो ये SE2 का मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा? हाँ, जब स्लिप ज्यादा होगी। मैक्सिमम स्लिप कितनी होती है? 1। वेरी गुड। मैक्सिमम स्लिप होती है 1, उससे ज्यादा स्लिप नहीं होगी। तो वो मैक्सिमम स्लिप 1 हमें कौन से कंडीशन पे मिलती है? NS इक्वल टू NR, तो S 0 हो गया।
NR equal to 0. वेरी गुड. NR equal to 0 मतलब कौन सी कंडीशन? इट इज स्टैंड स्टिल कंडीशन. तो हमें ऐसी कंडीशन को जनरेट करना है कि जब इवन इफ आई गिव सप्लाई, हमने देखा कि हमने कुछ भी रेटेड सप्लाई देने से पहले ही मोटर घूमने लगती है. तो मैंने कुछ भी सप्लाई अगर दिया तो रोटर रोटेट नहीं होना चाहिए, उसको स्टैंड स्टिल पे रहना चाहिए. एंड इज इट पॉसिबल कि मैंने वोल्टेज दिया एंड रोटर नहीं घूमा? इट इज नॉट पॉसिबल. तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें वो रोटर को लॉक करना पड़ता है. फिजिकली वी हैव टू लॉक द रोटर सो दैट रोटर घूमे ही नहीं. ओके. एंड तभी हम अगेन जैसे ट्रांसफॉर्मर में हमने किया था कि वी अप्लाई दी सम वोल्टेज कि जिससे फुल लोड करंट स्टेटर में से फ्लो हो. वो फुल लोड करंट देखने के बाद हम वोल्टेज इंक्रीज करना स्टॉप कर देते हैं एंड वी मेक नोट ऑफ दोज रीडिंग. वो वोल्टेज, वो पावर, ऑल दोज रीडिंग वी टेक. So that is not the short circuit test because we have not shorted anything, but that is the lock rotor or block rotor test which is equivalent to short circuit test. इसके अलावा हमें स्टेटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करने की जरूरत पड़ती है, जो हम सिंपली स्टेटर के टर्मिनल के अक्रॉस मल्टीमीटर से मेजर करते हैं. ओके. ऑलराइट, सो नोट डाउन दिस टेस्ट. डिटर्मिनेशन ऑफ टेस्ट फॉर tests for determination of equivalent circuit parameters. सबसे पहला टेस्ट, इट इज दी नो लोड टेस्ट. No load test, write down, it is equivalent to open circuit test in transformer. सर्किट का शॉर्ट फॉर्म ये है, CKT is the short form for circuit and XMER is the short form for transformer. In that, write down, induction motor is made to run on no load at rated voltage and frequency. At rated voltage and frequency. तो नो लोड टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में हमें क्या क्या रीडिंग्स मिले थे, वो रीडिंग्स यहाँ पे भी आएंगे. ऑब्जर्वेशंस क्या मिले थे हमें ट्रांसफॉर्मर में? बोलना है तुम्हें, क्या मिले थे हमें ट्रांसफॉर्मर में ऑब्जर्वेशंस नो लोड पे? इसीलिए बोला था जो ट्रांस टीआईएम की बुक है उसके पीछे ही वो इसका प्रैक्टिकल का भी बुक बनाओ. वो भी याद आ रहा है कि बनाया है ऐसा कुछ हमने. क्या क्या रीडिंग लिए थे? नो लोड करंट, पावर एंड वोल्टेज इज द रेटेड वोल्टेज. ओके. सो सबसे पहले हमें रेटेड वोल्टेज मिलता है VNL which is a rated voltage. NL मतलब no load. NL stands for no load, rated voltage. Then we get INL. Then we get PNL, no load power.
दिस इज पावर कंज्यूम, बिकॉज हम एक ही फेज का रीडिंग लेने वाले हैं. सो पावर कंज्यूम at no load per phase. इसमें से हमने क्या फाइंड आउट किया था ट्रांसफॉर्मर में? ट्रांसफॉर्मर में क्या मिला था, हम क्या फाइंड आउट किया था इसके ऊपर से? आरसी एंड आईसीआईएम. ओके, वो उसको डिवाइड किया. और कुछ कैलकुलेशन किया था क्या इसके ऊपर? फर्स्ट वी फाइंड आउट द RNL. RNL is equal to PNL upon INL square, because INL square into RNL is PNL. I square R is P. This is the equivalent resistance at no load. Then we found out ZNL. ZNL is equal to V upon I. ये नॉर्मल इक्वेशंस है, फंडामेंटल इक्वेशंस ही है, इसमें और कुछ नहीं है. एंड फाइनली हमें मिलता है XNL. XNL कैसे निकालेंगे इसमें से? XNL कैसे निकालेंगे? अरे XNL कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ माइनस Z. ZNL equal to what? अरे ZNL स्क्वायर is equal to RNL स्क्वायर प्लस XNL स्क्वायर ना. तो XNL स्क्वायर क्या होगा? XNL स्क्वायर क्या होगा? ZNL स्क्वायर. XNL क्या होगा? इसके आगे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ये जो XNL यहाँ पे हमें मिलता है, ऑफ कोर्स दिस इज आफ्टर सर्टेन अप्रोक्सीमेशन, जो हमने वो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को रिड्यूस वगैरह किया था, इधर उधर वो पैरेलल ब्रांच लेके गए थे. हम ये इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट व्हाट वी गेट हियर, दिस XNL is equal to X1 plus XM. ये XNL को पूरा कहते हैं सेल्फ इन क्या स्टेटर सेल्फ रिएक्टेंस पर फेज. दिस XNL स्टेटर सेल्फ रिएक्टेंस, सॉरी X1 होगा ये. दिस इज X1, ये हमें पता है ऑलरेडी. एंड XM is the reactance in magnetizing branch. It is also per phase. अब ये जो नो लोड पावर है जो हमने ऑब्जर्व की है, दिस PNL
ये PNL क्या क्या सप्लाई करती है? बिकॉज रोटर इज ऑलरेडी रोटेटिंग, रोटर रोटेट होता है तो फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस ये सब होंगे, तो इसीलिए वो भी पावर देना है। एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी स्टेटर वाइंडिंग एज वेल, तो वो वहां पे कॉपर लॉस भी होने वाला है। तो ये जो PNL है इसमें स्टेटर वाइंडिंग का कॉपर लॉस एंड जो रोटेशनल लॉसेस है वो, ये दोनों आते हैं। तो लेट अस राइट डाउन दैट PNL is equal to PR plus stator copper loss per phase, where PR is the rotational loss जिसमें आता है फ्रिक्शन, विंडेज and of course some core loss also. Okay, so PR is equal to PNL minus स्टेटर कॉपर लॉस कितना रहेगा? फॉर्मूला क्या है स्टेटर कॉपर लॉस का? क्या होगा? करंट कितना फ्लो हो रहा है स्टेटर वाइंडिंग में से? अभी INL फ्लो हो रहा है, हाँ, एंड रेजिस्टेंस कितना देखा हमने? RNL, हाँ, तो दिस इज PNL माइनस INL स्क्वायर इनटू RNL. एंड इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज 3 फेजेस का है ये जो पूरा है ये पर फेज है, हमें 3 फेज का रोटेशनल लॉस मिलता है। ओके, नाउ विल गो अहेड एंड फॉर द सेकंड टेस्ट जो है ब्लॉक रोटर टेस्ट. ब्लॉक रोटर टेस्ट इज इक्विवेलेंट टू whom? ब्लॉक को लॉक भी कहते हैं, इन सम लिटरेचर दे हैव मेंशन्ड लॉक रोटर. It is equivalent to short circuit test in transformer. तो इसमें रोटर रोटेट होता है क्या? Will the rotor rotate? No, because we have locked the rotor. So rotor is blocked or rotor is locked. NR is equal to 0 and slip is equal to what? Slip is equal to 1. Rated current is made to flow at lower voltage and rated frequency. At lower voltage rated frequency. So what will be the observations?
जो वोल्टेज पे रेटेड करंट फ्लो होगा उसको कहते हैं VBR, V ब्लॉक रोटर, VBR. करंट विल बी IBR. IBR क्या है? IBR is actually the rated current. And power which is consumed, it is called as PBR, block rotor power. ऑब्जर्वेशंस के बाद कैलकुलेशंस आएंगे. Now after certain approximation, ये इसका derivation मैं नहीं दे रही हूँ. After certain approximations, I am directly writing the formulas which we have got. हाँ, हमें कैलकुलेशंस करने हैं ना, ये बाद में आएगा. लेटर ऊपर जैसे कैलकुलेशंस किए थे वैसे इधर भी रहेंगे. RBR इज इक्वल टू PBR अपॉन IBR स्क्वायर. ZBR इज इक्वल टू PBR अपॉन IBR एंड XBR जैसे ऊपर किए थे. Now after certain approximations हमें मिलता है XBR is equal to X1 plus X2. अभी X1 क्या है? What is X1? Stator self reactance. And what will be X2? Rotor self reactance. Okay. RBR is equal to R1 plus R2 XM upon X2 the whole square. Therefore, R2 is equal to अब ये XBR को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है X1 एंड X2 में. सो डिपेंडिंग अपॉन मोटर वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं. मैन्युफैक्चरर ऑल्सो ओनली गिव द डिस्ट्रीब्यूशन कि उसको हाफ में डिवाइड करना है या उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है. स्क्विरल केज के लिए स्पेशली मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. तो वहां से हमें X1 X2 मिल जाएंगे. यहाँ से मुझे R2 मिलेगा अगर मेरे पास R1 है तो R1 निकालने के लिए मुझे वो स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस का टेस्ट करना पड़ेगा, जहां पे डायरेक्टली हम स्टेटर टर्मिनल के अक्रॉस मल्टीमीटर लगा के वी विल चेक कि उसका स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज कितना है. ओके, सो दैट इज द थर्ड टेस्ट व्हिच इज स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट. जिसमें हम क्या चेक करते हैं, R1 पर फेज is directly measured at ambient temperature. Temperature is also important. At ambient temperature
across stator terminals. Okay. तो यहाँ पे मुझे मिलता है R1, यहाँ पे मुझे मिलता है R2. From here I'll get X1 and X2. And from this no load test मुझे ये XM मिलता है यहाँ. तो इक्विवेलेंट सर्किट के सारे पैरामीटर्स ये 3 टेस्ट में फाइंड आउट कर सकते. नो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस. Okay. All right. Any doubt up to this point? Should we go for the numerical based on power generated? Note down. A 10 kilowatt (10 kilowatt) 400 volt 3-phase 4-pole 50 hertz delta connected. अब डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर कहेंगे तो उसका स्टेटर जो है, स्टेटर वाइंडिंग, दे आर डेल्टा कनेक्टेड. ये जो कनेक्शन लिखा है वो स्टेटर वाइंडिंग का है. As following observations. As following observations. At no load, line current (8 ampere), input power 660 watt. At full load, line current 18 ampere, input power 11.20 kilowatt. Stator effective resistance per phase is equal to 1.2 ohm. Friction plus windage loss for 20 watt. Rotor ohmic loss at no load is negligible. Is negligible. Find stator core loss, total rotor loss, at full load,
अगर कुछ छूट गया है बीच में लिखने का, आई एम डिस्प्लेइंग इट अगेन आफ्टर आई फिनिश राइटिंग. टोटल रोटर ओहमिक लॉस. Total rotor ohmic loss at full load. Full load speed. Internal torque. Shaft torque. And efficiency. Neglect rotor core loss. किसी का लिखना बाकी है तो लिख लो. डन. ओके. तो हमें क्या क्या दिया गया है? वी हैव गिवन 10 किलोवाट. 10 किलोवाट क्या होगा? 10 किलोवाट जो दिया है, पहले हमें जो दिया है उसको समझने की जरूरत है. क्या फाइंड आउट करना है वो बाद में देखते हैं. 10 किलोवाट क्या होगा? व्हाट इज 10 किलोवाट? हाँ, रेटेड किलोवाट. रेटेड वीए ट्रांसफॉर्मर में रहता है. वो क्या रहता है बट रेटेड वीए? ट्रांसफॉर्मर का क्या रहता है रेटेड वीए? ट्रांसफॉर्मर का रेटेड मत पावर मतलब क्या? पावर तो हम बहुत जगह देते हैं. अभी इसमें तो कितने सारे पावर देंगे. तो कौन से साइड का पावर है वो? नेम प्लेट पे जो पावर लिखा रहता है वो कौन सा पावर रहता है? पावर कौन सा रहता है? यूनिट मत बताओ मुझे, पावर कौन सा रहता है? इनपुट रहेगा. कंज्यूमर या जो मोटर यूज करने वाला है वो इनपुट पावर में इंटरेस्टेड है क्या? आउटपुट पावर में. तो जब भी मोटर के नेम प्लेट पे कोई पावर दिया जाता है या ऐसे न्यूमेरिकल में पावर लिखा है इन मोटर स्पेसिफिकेशन, तो वो होता है मोटर का आउटपुट पावर. ओके. And in that also, to be precise, it is shaft power which is available for consumer. आउटपुट पावर कौन सा? जो कंज्यूमर को अवेलेबल है वो ये पावर है. ओके. शुड वी गो अहेड? 400 वोल्ट क्या है? रेटेड वोल्टेज जो हम मोटर के टर्मिनल को देंगे. अच्छा, ये कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज है या फेज वोल्टेज है? हाँ, जब भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो वो लाइन वोल्टेज रहता है. ओके, इट इज लाइन वोल्टेज. थ्री फेज मोटर, थ्री फेज है, 4 पोल है. तो यहाँ से 4 पोल दिया है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? 50 हर्ट्ज भी दिया हुआ है. क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एनएस. ओके. तो कोई भी इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल में आपको अगर पोल दिए हैं, फ्रीक्वेंसी इज ऑब्वियसली 50 हर्ट्ज, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनएस.
भले लगे या ना लगे, वो NS निकालना ही पड़ेगा। वो करेंगे तो वहीं पे आपका आधा 1 मार्क जुड़ जाएगा, हाँ, स्टेप का। फिर क्या हो रहा है, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग है। डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर मतलब उसका जो स्टेटर वाइंडिंग है दैट इज डेल्टा कनेक्टेड। अभी डेल्टा कनेक्टेड में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम रहता है, इक्वल रहता है, बट लाइन करंट एंड फेज करंट क्या, आई फेज इज इक्वल टू IL/√3, बराबर। तो जो भी करंट दिए है इधर वो लाइन करंट है, और जब हम कैलकुलेशन पर फेज का करने वाले हैं तो हमें फेज करंट चाहिए, ना कि लाइन करंट। ये दिमाग में बिठा लो। डेल्टा कनेक्शन दिया है मतलब वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर इक्वल, उसमें कोई 400 वोल्ट फिर लाइन वोल्टेज भी है फेज वोल्टेज भी है। बट जो करंट अगर लाइन करंट दिए है तो मुझे कैलकुलेशन के लिए पर फेज क्वांटिटी चाहिए, तो मुझे वो लाइन करंट को फेज करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। एट नो लोड, अभी देखो ये लाइन करंट दिया है, तो ये इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, फेज करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इनपुट पावर दिया हुआ है नो लोड पे कितना लगता है। अभी नो लोड पे किस किस लिए पावर कंज्यूम होती है, अभी जो बताया था नो लोड टेस्ट में, PNL लिखा है हमने, PNL। उसमें क्या कंपोनेंट्स लिखे थे, क्या कंपोनेंट्स लिखे थे उसमें। अच्छा, नो लोड पे क्या होता है मोटर में, जब मोटर नो लोड पे घूमती है तब क्या होता है, जब हम सप्लाई देते हैं उसके बाद क्या होता है। सप्लाई देने के बाद सबसे पहले मोटर में क्या होता है, कहाँ सप्लाई देते हैं हम लोग, स्टेटर वाइंडिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट को याद करो, सबसे पहले क्या होगा, हाँ, क्या होगा, वोल्टेज देने के बाद V1 अप्लाई किया, फिर उसके बाद क्या आया, I1 आया, मतलब स्टेटर वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा, करेक्ट। फिर उसके बाद आए R1 X1, तो स्टेटर का स्टेटर में कौन से लॉसेस होंगे, हाँ, तो कोर, पहले तो कॉपर लॉस भी होगा स्टेटर का R1 के वजह से, एंड कोर लॉस भी होगा, करेक्ट। फिर उसके आगे क्या होगा, नाउ मोटर इज रनिंग ऑन नो लोड, मतलब S इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। हमने देखा कि 1500 RPM अगर उसका सिंक्रोनस स्पीड था तो इट वाज रोटेटिंग एट 1499 98 वगैरह उतने RPM पे वो घूमती है नो लोड पे। तो S इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, मतलब इंड्यूस्ड EMF जो रोटर सर्किट में है SE2, वो भी बहुत ही कम रहेगा, निग्लिजिबल, एंड इसीलिए देयर विल बी वेरी निग्लिजिबल करंट फ्लोइंग थ्रू रोटर कंडक्टर। रोटर कंडक्टर में कोई भी ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, तो मेरा I2 जो है आई कैन कंसिडर इट इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, अगर I2 0 है तो रोटर में कोई लॉस होंगे क्या, नहीं होंगे, कोर लॉस भी नहीं होगा, कॉपर लॉस भी नहीं होगा, बट मोटर घूम तो रही है, तो घूम रही है तो कौन से लॉस होते हैं, फ्रिक्शनल लॉस तो होंगे। ठीक है, तो ये पहला जो नो लोड का कंडीशन है उसमें क्या होगा, उसमें आपका स्टेटर का लॉस होगा, स्टेटर का कॉपर लॉस, स्टेटर का कोर लॉस, एंड मेरे जो फ्रिक्शनल विंडेज लॉसेस है वो होंगे। तो वो जो इनपुट पावर है वो उसमें हम इंडक्शन मोटर उसमें यूटिलाइज करेगी। इज दैट क्लियर, ओके। तो पहले हम वो खत्म करते हैं फिर फुल लोड पे जाते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या बताया, अभी नो लोड पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा करंट दिया हुआ है, लाइन करंट, तो उसको हमें करो एट नो लोड।
I1 इज इक्वल टू I1 मतलब स्टेटर करंट पता है ना अभी सबको, आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। हाँ, क्या होगा I1? इट इज 8 डिवाइडेड बाय √3 एम्पियर एंड दिस इज पर फेज। दिस इज फेज करंट, पर फेज लिखना जरूरी है, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा यू कैन राइट। ओके, अभी जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर एट नो लोड, ये किसमें यूटिलाइज होने वाली है? किसमें यूटिलाइज होगी? लुक एट द इक्विवेलेंट सर्किट एंड टेल मी। सबसे पहले क्या आएगा? पे अटेंशन हियर, कैलकुलेशन बाद में करो। इनपुट पावर एट नो लोड, ये किसमें यूटिलाइज होने वाली है? कोई मैकेनिकल पावर डेवलप नहीं होने वाली, वो हमें पता है ऑलरेडी, बट इनपुट साइड से आओ, कहाँ कहाँ बीच में, कहाँ कहाँ कौन है लॉस करने वाला? हाँ, R1। तो R1 में लॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटर। कौन सा लॉस होता है R1 में? कॉपर लॉस। फिर कौन है उसके बाद? हाँ, उसमें कौन सा लॉस होता है? स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, नो लोड है इसीलिए रोटर में जो करंट है इट इज ऑलमोस्ट जीरो, तो वो कोई भी नहीं आएगा बीच में। एंड डायरेक्टली कौन सा लॉस आएगा? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, बिकॉज रोटर इज रोटेटिंग। ओके, फाइन अप टू दिस पॉइंट। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ओके, तो अभी हमें इसके क्या क्या किसका किसका वैल्यू पता है उस वो हम इंसर्ट कर लेते हैं। व्हाट इज इनपुट पावर एट नो लोड? कितना दिया है? हाउ मच इज इनपुट पावर एट नो लोड? 660. So this is 660. Okay, this is equal to स्टेटर कॉपर लॉस पहला लिखना है मुझे। स्टेटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है? दिस फॉर्मूला क्या है इसका? I NL स्क्वायर इंटू, हाँ वो स्टेटर, बट ये स्टेटर का है ना, ये जो है ये स्टेटर का कॉपर लॉस है। तो स्टेटर में अभी हम करंट लिख सकते हैं, दिस इज I1 मतलब स्टेटर का करंट, I1 स्क्वायर इंटू R1 रोटर स्टेटर रेजिस्टेंस पर फेज। बट ये फिर क्या हुआ, ये सिर्फ पर फेज का स्टेटर कोर लॉस हुआ, मुझे तीनों फेज का स्टेटर कोर कॉपर लॉस चाहिए। ये सिर्फ पर फेज का स्टेटर कॉपर लॉस हुआ, आई हैव 3 फेजेस, मुझे तीनों फेज का स्टेटर कॉपर लॉस चाहिए। तो व्हाट विल आई राइट हियर? 3 इंटू I1 कितना है? 8/√3 द होल स्क्वायर इंटू R1 दिया हुआ ना, कितना दिया है R1? हाउ मच इज R1? 1.2 प्लस, अभी मुझे स्टेटर कोर लॉस पता नहीं है, नहीं दिया हुआ है स्टेटर कोर लॉस।
ओके, प्लस फ्रिक्शन विंडेज लॉस दिया है क्या? हाँ, कितना है? 420। अभी अगर मैंने इसको 8/√3 ही रखा है तो √3 का स्क्वायर होगा 3 एंड दिस 3 विल गेट कैंसल्ड, इसीलिए मैंने वो कन्वर्ट नहीं किया था। तो हु इज द अननोन हियर? अननोन कौन है इधर? स्टेटर कोर लॉस। तो हम इसमें से स्टेटर कोर लॉस निकाल सकते हैं। कितना है? 163.2 वॉट। ओके, ऑलराइट। तो नो लोड का हिसाब हो गया। अभी अभी कौन सी इंफॉर्मेशन दी थी नो लोड के बाद? एट फुल लोड। कर रहे हो आप लोग कैलकुलेट? ये नहीं आया अभी तक स्टेटर कोर लॉस? हो गया, 163.2 आया। आ गया। आए तो मुझे बता देना, हो गया तो। हो गया है सबका? अंकित,
हो गया क्या? हाँ, अभी फुल लोड में क्या दिया हुआ है? What is the information provided? Full load. Again, you have given line current. लाइन करंट से वापस से हमें वो फेज करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और क्या दिया हुआ है? इनपुट पावर दिया है, राइट? नाउ पे अटेंशन हियर एवरीवन. ये हमारा पावर फ्लो डायग्राम हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया हुआ है. जो पावर हम इनपुट में देते हैं, हाँ, जो पावर हम इनपुट में देते हैं, उसके बाद उसमें स्टेटर कॉपर लॉस होता है, जो हम अभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं फुल लोड पे, क्योंकि करंट बताया है, रेजिस्टेंस बताया है, तो 3I1 स्क्वायर R1 वो वही रहेगा. स्टेटर कोर लॉस, जो वो पैरेलल ब्रांच है, जो वो कोर लॉस हम पता है हमें, दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज. तो वोल्टेज हम चेंज नहीं कर रहे, रेटेड वोल्टेज ही दे रहे हैं फुल लोड पे भी, तो इट विल रिमेन सेम. जो अभी आया है 163.2, वो चेंज नहीं होगा. एंड ये पावर इनपुट से अगर हमने ये दो पावर हटाए तो मुझे क्या मिलेगा? पीजी. तो मुझे उसमें से पीजी मिला. फिर मुझे पीएसएच ऑलरेडी दिया हुआ है, आउटपुट पावर 10 किलोवाट, बराबर. और वो पीएसएच में अगर मैंने ये मैकेनिकल लॉसेस जोड़ दिए, अगर मैकेनिकल लॉसेस मैंने ऐड किए वो पीएसएच में, तो मुझे पीएम मिलेगा, राइट? तो अभी अगर मेरे पास पीजी एंड पीएम है, तो मैंने ऑलरेडी वो उसका रिलेशनशिप बताया है पीएम एंड पीजी का, जिसमें से मुझे एस मिलेगा, स्लिप. तो मैं रोटर का स्पीड फाइंड आउट कर सकती हूँ एट फुल लोड. ये वन ऑफ द क्वेश्चन था. अगर मुझे पीजी पीएम मिला तो मुझे पीसीयू भी मिलेगा, रोटर का कॉपर लॉस, बराबर, करेक्ट. और अगर ये सारे मुझे मिल गए तो मुझे टॉर्क भी मिलेगा. एंड एफिशिएंसी इज फाइनली PSH upon Pin at full load. Output power upon input power is nothing but efficiency. ठीक है? तो as ritual I am telling again कि ये जो अभी न्यूमेरिकल है, ये आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके लेके आओ, जो अभी बताया वो. ठीक है? ठीक, असं काही जबरदस्ती नहीं. अपनों को अब लगा, आपके मन को भाया, तो आप करो.